इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। और ये वेव जो है ना सीधे ऊपर ये जो हम बोल रहे हैं वो रिसीव करके लैपटॉप जो है वो फिर वो क्लाउड में चला जा रहा है, उसको मैग्नीफाइड करके फिर यहाँ बैक आ रहा है स्टेशन पर, और तुम लोग सुन रहे हो, तुम लोग का मोबाइल या लैपटॉप कैच कर रहा है मैग्नीफाइड ये वेव, तो तुम लोग सुन पा रहे हो। तो ये कुछ ना कुछ ऊपर हलचल चल रहा है ना। एयर का फास्ट मूवमेंट होगा कहीं ना कहीं किसी एरिया में, किसी एरिया में होगा फास्ट मूवमेंट, तो इसके वजह से जो है ना हम लोग को डिस्टर्ब हो रहे हैं, कनेक्शन में डिस्टर्बेंस है। अब एक यहाँ इसलिए बोले तुम लोग को पहले, अनन्या क्या कुछ बोलना चाह रही हो? अनम्यूट करो बेटा, अपने आप को अनम्यूट करो, अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, ma'am. हाँ, क्या Ma'am, बोलना चाह रही हो? ma'am, can I say something about Marie Curie, हाँ, a वेरी गुड। scientist? हाँ, से अबाउट मैरी क्यूरी, वेरी गुड। Yes, ma'am. हाँ, Marie Curie was born in Warsaw, Poland in 1867. She was the youngest of 5 children in 1891. She moved to Paris, where she studied physics, chemistry, and math at the University of Paris. She earned a degree in physics in 1893, and then she earned a second degree in 1894. In 1895, she married Pierre Lee Curie, who was a physics and chemistry teacher. Together, Marie and Pierre successfully isolated the elements polonium and radium, which was a significant scientific advancement. In 1900, Marie became the first female faculty member at the École Normale Supérieure, which was a French university. She earned her PhD in science from the University of Paris in 1903. The same year, Marie and Pierre Curie, along with Henry Becquerel, were awarded the Nobel Prize in Physics. Marie was the first woman awarded the Nobel Prize. In 1911, she was awarded a second Nobel Prize in Chemistry. She died in 1934 from long-term exposure to radiation. Ma'am completed. very good, very good. And listen, all of you, it was Madame Curie who got the first Nobel Prize. She was first woman who got first Nobel Prize. And Ananya, you know about Madame Curie? She was so poor. She was poor. Yes, Actually, ma'am. she was native of Germany, but due to some problem, she their family flew to the Poland, and he was so genius. She was so genius. He Pierre Curie, who was the husband of the Madame Curie. Previously, he was not husband. He was the professor of the Madame Curie. और he saw कि she is genius, and she having dedication towards the study. And Pierre Curie thought कि if I got married with the Madame Curie, I will be famous, है ना? I will be Yes, famous. ma'am. And that's why he helped the Madame Curie. Madame Curie invented a radioactive element. How did he invented? She invented. You know, she take the waste product of the radioactive factory. The factory which was using the radioactive material. He take the waste कचरा, है ना, कचरा of Yes, waste ma'am. of radioactive factory, and he study the waste, and then after he able to find out the radium and polonium, I think.
द रेडियम एंड हाँ इट इज पोलेनियम सी गॉट. तो सी इन्वेंटेड, you know, her daughter also got Nobel Prize in the ये Yes, chemistry. ma'am. And ये डाउटर ऑफ डाउटर मैंने जिसको नातिन कहते हैं ना, नतनी, उसको Yes, भी ma'am. नोबेल प्राइज मिला और वो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट पर वो वर्क की. मतलब पूरा 3 जनरेशन, मैडम क्यूरी एंड डाउटर ऑफ मैडम क्यूरी एंड डाउटर एंड ये उसको ये नातिन जो हम लोग बोलते हैं ना, वो भी Yes, मैडम ma'am. क्यूरी का और उसका हस्बैंड भी वो उस पे वर्क किया. सोच लो उस जमाने मैम में. ग्रैंड डॉटर. हाँ ग्रैंड डॉटर, हाँ वेरी गुड, ग्रैंड डॉटर और हर हस्बैंड आल्सो. तो देखो 3 जनरेशन और वो कचरे से बेटा देखो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है ना निकाली और ये इन्वेंट की. देखो हम ये कहना चाह रहे हैं, इसलिए हम बोले हैं कि जीके का पीरियड जब भी शुरू होगा तो एक साइंटिस्ट से. अब एक कल जो है मतलब जो कमिंग कल है, मतलब नेक्स्ट कमिंग मंडे को जो है तुम लोग ये जो है तुम्हारा आज जो पढ़ोगे द वर्ल्ड ऑफ आर्ट, तो इसमें जो है ना Yes, ये सब. ma'am. हाँ ये मोनालिसा का पोर्ट्रेट जो है बना है लियोनार्डो दा विंची. लियोनार्डो दा विंची. हाँ तो ये आयतुल मालूम है लियोनार्डो दा विंची केवल पेंटर नहीं थे, ही वाज मैम इंजीनियर. वो मैम आर्किटेक्ट थे, मैम मैथमेटिशियन थे, उसके बाद मैम हाँ. होम डिजाइनर थे और मैम पेंटर भी थे मैम, बहुत कुछ थे मैम. इतना थे कि मैम मुझे याद भी नहीं. एकदम वर्सेटाइल पर्सनालिटी के थे वो ये यस लियोनार्डो मैम इंजीनियर भी थे, मैम इंजीनियर आर्किटेक्ट भी थे, मैम होम डिजाइनर भी थे, साइंटिस्ट भी थे. साइंटिस्ट भी थे. तो इसलिए देखो ये कैरेक्टर ये एक आदमी जो है कितने एरिया में वर्क कर सकता है. हम ये इसलिए बता रहे हैं कि देखिए आप अगर अपने वर्क के प्रति डिवोशन शो करेंगे तो हर एक एरिया में हर एक क्षेत्र में आप आगे होंगे, है ना, हर एक क्षेत्र में आप आगे होंगे. इसलिए जो भी वर्क कीजिए, जो भी ये एकदम कंप्लीट डिवोशन के साथ, हाँ बहुत जरूरी है. और ये तो आप देख ये फिर से और डिटेल्स में अनन्या तो कितना अच्छा की कि मैडम क्यूरी के बारे में बताई, और भी मैडम क्यूरी के बारे में लाइफ हिस्ट्री तुम लोग रीड करो और जानो. और मैम मुझे मैम मुझे मैम और भी मैम क्या पता है मैम, मैं पता है? बोलूं? हाँ दूसरे दिन अनन्या, दूसरे दिन उसको एकदम ये Okay, ma'am. साइंटिस्ट का तो हम एकदम बहुत क्लास अब फिनिश होने वाला है, उसके बाद हम लोग साइंटिस्ट का ही ये Yes, करेंगे, ma'am. चर्चा करेंगे. Okay, क्योंकि ma'am. वो जरूरी है, उन लोग के लाइफ हिस्ट्री से बहुत ज्यादा लेसन मिलता है. कैसे वो लोग उस जमाने में जबकि बहुत सारा इन्वेंशन नहीं हुआ था और फिर भी वो इन्वेंट कर पाए. ये उनके पास ये साधन हो या नहीं हो, लेकिन वो रिसर्च कर पाए. तो इस बात को देखना चाहिए, सीखना मैम चाहिए. फन फैक्ट मोनालिसा का आईब्रो मैम मिटा हुआ था मैम. ये मिस्ट्री क्यों आईब्रो नहीं है मोनालिसा का? हाँ तो उसके लिए हिस्ट्री में भी क्या था ना कि वो बहुत वहाँ फाइटिंग होता था ना जीव और उसके बीच, तो कम्युनिटी के बीच. तो शायद ये लियोनार्डो दा विंची जो है ना वो बना रहे थे, तभी कहीं मैम भाग गए. स्पेन के साइंटिस्ट ने मोनालिसा को अच्छे से देखा था, उसके बाल में मैं स्पेनिश में लिखा हुआ था द आंसर इज देयर, लेकिन समझ में नहीं आया कि आंसर क्या है. हाँ और वो अभी बन ही रहा था, बन तो गया था बेटा, लेकिन अभी और उसमें फिनिशिंग देना था, तभी लड़ाई के वजह से वो शायद वहां से उतना ही बन पाया. और हम लोग अभी तक उसका और इतना इस फेमस प्रोटेक्ट का ये क्या है, देखो इसमें एक में ना मोनालिसा के एक माने आई में वन आई में जो है आंसू है ना, आंसू आ रहा, एक में हंसता हुआ. देखो इसका ये इम्पोर्टेंस है, ये पोर्ट्रेट का इम्पोर्टेंस है
कि एक आंख से तो आंसू आ रहा है, दूसरे आंख में जो है ना हंसी की चमक। तो ये कैसे हुआ और इसका क्या मीनिंग था, अभी तक मिस्ट्री वो सॉल्व नहीं हो पाया। अब चलो, तो अब ये इसको फिनिश करें। द वर्ल्ड ऑफ आर्ट। गिवन बिलो आर सम ऑफ द फेमस पेंटिंग्स दैट हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय आर्टिस्ट वर्ल्ड ओवर। रिया, आवाज नहीं आनी चाहिए बेटा। देखिए हम लोग बहुत सारे बात कर चुके हैं, अब बिल्कुल नहीं। जिसके घर से भी आवाज आ रही है तो माइक को म्यूट कर लो। हाँ, माइक को म्यूट कर लो। आर्ट एंड कल्चर तक तुम्हारा हाफ ईयरली का ये पोर्शन है, इट शुड बी फिनिश्ड। इसको फिनिश होना है। और मेरा क्लास चलो, गिवन बिलो आर सम ऑफ द फेमस तो तू भी यही बता देखे। हम सबको म्यूट कर देंगे फिर। बताए ना तुम लोग को, अगर घर में आवाज आने लगे तो पहले माइक को म्यूट करो। बिना सोचे समझे पहले माइक को अपने म्यूट कर दो। चल, given below are some of the famous paintings that have been produced by artists world over. Use the help box given below and write the painters who has created each of these amazing works of art. अब ये जो है ये मोनालिसा का तो हो गया। लियोनार्डो दा विंची, देखो सेकंड कॉलम में दिया है, उसको लिखो सभी, लियोनार्डो दा विंची। नेक्स्ट, पोर्ट्रेट ऑफ डोरा मार। डोरा मार का पोर्ट्रेट, इसके बारे में किसको पता है? डोरा मार के पोर्ट्रेट के बारे में क्या, क्यों इसका इम्पोर्टेंस है? सुना है। हाँ, क्या है बोलो, ऋषिका बोलो बेटा, क्या इम्पोर्टेंट है डोरा मार्ट का? डोरा मार्ट का पोर्ट्रेट में इम्पोर्टेंस क्या, किस बात का इम्पोर्टेंस है? नहीं है तो सब लोग पता करेंगे, केवल ऐसा ही नहीं पढ़ेंगे, जो भी कुछ दिया है उसका डिटेल्स जानना है। ये पेंटेड बाय पैब्लो पिकासो। पैब्लो पिकासो हेल्प बॉक्स में फर्स्ट वर्ड है उसको लिखो, सेकंड वाले में लिखो सुभांशु, पाब्लो पिकासो। सेकंड वाला जो पोर्ट्रेट जो है, पेंटेड बाय पाब्लो पिकासो। थर्ड, कृष्ण बलराम। ये कृष्ण बलराम का पोर्ट्रेट बाय जेमिनी रॉय। आप पेंटेड बाय जेमिनी राय। ये भी हमारे इंडियन है, इंडियन पेंटर है, बहुत फेमस है और बहुत बड़े आर्टिस्ट है, बहुत अच्छा बहुत सारे पोर्ट्रेट बनाए हैं और इनको बहुत सारा अवार्ड भी मिला है, जेमिनी रॉय। नेक्स्ट, पिएटा, पेंटेड बाय मिचेलोंग, है ना, पेंटेड बाय मिचेलेंजेलो। ये जो हेल्प बॉक्स में माइकलएंजेलो सेकंड कॉलम में है नीचे वाला, वो Portrait of Dora Maar is a 1937 oil on canvas painting by Pablo Picasso। मैम आर्टिस्ट का नाम मैम क्या है? मैम इसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ मैम। अब नेक्स्ट, इसके पिएटा में फोर्थ में लिखो मिचेलेंग जेलो, ये नेम लिखो फोर्थ वाला पोर्ट्रेट में। फिफ्थ में लिखो सनफ्लावर जो है पेंटेड बाय विंसेंट वैन गो। विंसेंट वैन गोस, विंसेंट वैन गोस लिखो। और एक जो है सिक्स है, सिक्स में लिखो अमृता शेरगिल। अमृता सेग्रो, हाँ ये भी इंडियन है। देखो इसमें कितने सारे इंडियन आ गए, जेमिनी रॉय है ना, और ये जेमिनी रॉय और ये अमृता शेरगिल और विंसेंट वैन गोस। ये हम लोग का खत्म होगा तो हम पूछेंगे भी, और ये सभी के बारे में सभी, जैसे कैसे अनन्या अभी
मैडम क्यूरी के बारे में बताई, वैसे ही सब लोग एक एक के बारे में बताएगा, इसके बारे में, इसका पोर्ट्रेट, इसका पेंटिंग, ठीक है, क्योंकि अब सिलेबस खत्म हो चुका है, होना ही तो बाकी है, तो डिटेल्स में जानते चलेंगे, जीके ही पढ़ रहे हैं तो सारा कुछ डिटेल्स जानेंगे, है ना। अब चलो नेक्स्ट, फेमस पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, इंडियन ओरिजिन के फेमस पीपल given below are the hints about some famous people of Indian origin. Use the help box to find out the correct name. अब देखो ये हॉलीवुड फिल्म and TV actor who achieved greater political heights under the administration of President Obama. तो ये कौन थे, who was he? तो ये थे ये कल्पेन सुरेश मोदी। हेल्प बॉक्स में फर्स्ट वर्ड है, उसी को लिखो, ईशानी लिख रही बेटा, हेल्प बॉक्स में जो फर्स्ट वर्ड है ना कल्पेन सुरेश मोदी, तो ये होगा फर्स्ट वाले का आंसर, कल्पेन सुरेश मोदी। Second, the 2009 Nobel Prize winner in chemistry, ये इंडियन, तो वेंकट रमन रामकृष्णन, वेंकट रमन रामकृष्णन, सेकंड वाला जो है ना वो सेकंड में लिखो, सेकंड वाला जो है वही आंसर है, वेंकट रमन रामकृष्णन, वेंकट रमन रामकृष्णन, सेकेंड वर्ड जो है हेल्प बॉक्स में उसको लिखो। नेक्स्ट, द प्रेजेंट अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ साउथ कैरोलिना, तो ये निक्की हेली। हाँ वेरी गुड, निक्की हेली, राइट डाउन निक्की हेली। And next, the eyes, the co-inventor of USB technology, अजय भट्टा। हाँ अजय भट्ट। मैम मैं इसके बारे में जानता हूँ। हाँ बोलो बेटा, जानते हो इसके बारे में बोलो। Ajay Batta is an Indian politician who is currently serving as a Minister of State in the Ministry of Defense and Ministry of Tourism in second Modi minister. He is also a member of Parliament from Nital Udham Singh Nagar. चलो वेरी गुड, राइट डाउन ये द को-इन्वेंटर ऑफ USB टेक्नोलॉजी अजय व्हाट। फिफ्थ, द डिजाइनर ऑफ इंटेल पेंटियम चिप, ये है विनोद धम। विनोद धम। नीचे लिखा है सेकंड कॉलम में, सेकंड कॉलम में नीचे विनोद धम। द विनर ऑफ पुलित्जर प्राइज ऑफ जनरल नॉन फिक्शन, तो ये है सिद्धार्थ मुखर्जी। द विनर ऑफ पुलित्जर प्राइज फॉर जनरल नॉन फिक्शन, ये सिद्धार्थ मुखर्जी। महेंद्र चौधरी, ये 6 का सिद्धार्थ मुखर्जी है, सभी लिखो, हेल्प बॉक्स में सबसे लास्ट में जो लिखा है सिद्धार्थ मुखर्जी। 7th, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिजी, देखो फिजी कहाँ है, ये आइलैंड है फिजी, वो कहाँ है, वहां इंडियन प्राइम मिनिस्टर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर महेंद्र चौधरी।
और ये द फर्स्ट person of Indian origin to be elected as Chief Minister of Province of Canada. ये कौन है? दोजान हाँ, दोसांझ। दोजा दोसांझ। अजय, अब देखो एक डू यू नो में देखो, डू यू नो मॉरिशस इज द कंट्री दैट हैव 5 प्राइम मिनिस्टर who hail originally from the Bihar state in India. मॉरिशस में 5 बिहारी, मैम हाँ बिहार है स्टेट के। बिहार का आदमी है। हाँ 5 बिहार का आदमी। एक बात बताएं, अभी तो ये बता रहे हैं कि बिहारियों का ब्रेन बहुत शार्प है, इंडियन का, टोटल इंडियन का ब्रेन बहुत शार्प है, लेकिन हम लोग जो है ना थोड़े टाइम के लिए, हम लोग का तो पता ही है कि पूरे कंट्री से हम लोग यहाँ आता था लोग अपना नॉलेज गेन करने। हाँ ये पता है ना, आर्यभट्टा जो है बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, ये पता है कि नहीं? और एक स्टोरी है, हाँ टाइम बचेगा ना, ये पपेट शो ये हो जाता है, टाइम बचता है तो ये स्टोरी स्टोरी बताएंगे तुम लोग को। हाँ ये पपेट राउंड है। हाँ वो हम बताएंगे ये। हाँ बोलो। ये हो जाता है तो आर्यभट्ट की स्टोरी बताएंगे, सभी सुनना, कितना इंटरेस्टिंग है ये स्टोरी है, कितना अच्छा। ब्लैक बोर्ड सबको दिख रहा है, विजिबल है? यस मैम। एक सेकेंड, तो ये हम स्टोरी बताएंगे आर्यभट्ट का, जल्दी जल्दी लिख लो। हाँ देखो, ऋषिका के घर से आवाज आया, ब्लैक बोर्ड को डबल क्लिक कर दे रहे हैं। मैम आर्यभट्ट के बारे में मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलो ना, तब तक बोलो। हाँ बोलो, लिखते हैं तब तक सब लोग सुने। आर्यभट्ट आई वाज द फर्स्ट ऑफ द मेजर mathematicians, astronomer from the classical age of India, mathematician and India astronomy. He work includes of Aryabhat and Arya Siddhanta. For his explicit mention of the relative. ये उसकी कहानी बताएंगे ये, चलो इसको लिखो। मैम बता दीजिए ना, वो बाद में भराइएगा। बाद में पढ़ाएंगे क्या? एक वो जो है ना फॉरनर जो आया, जो क्या था, फॉरनर का नेम नहीं हमको याद आ रहा है, लेकिन वो आया, कहा क्या ना पढ़ने आया, वो नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने आया। फाहियान नहीं थे वो, अभी उनका नेम भूल गए, फॉरनर थे। बोले कि ये ये आर्यभट्ट का नहीं, सॉरी, ये चरक के बारे में। चरक जो है ना बहुत अच्छा ये मेडिसिन वाले थे, सॉरी ये आर्यभट्ट का नहीं। बोले कि चरक तुम्हारे मेडिसिन के बारे में, तुम्हारे कंट्री में मेडिसिन का क्या क्वालिटी है उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। तो वो हितांशी कहाँ ध्यान दे रही हो, ये स्टोरी सुनो, इंडिया का साइंस टेक्नोलॉजी कितना डेवलप था। तो वो बोले कि अरे इंडिया के बारे में आप जानना चाह रहे हैं, तो कहा कि हाँ। तो कहा कि अब इंडिया का मेडिसिन जो है, मेडिकल साइंस कितना वेल डेवलप है, उसके लिए आपको क्या कुछ नहीं करना है, बस हम 2 चीज कह रहे हैं वो करते जाइए। अभी तो आप क्या कीजिए कि वो नॉर्थ से आया था, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा था, तो बोले कि आप कुछ नहीं, केवल टैमरिंड है ना, इमली के फूड को खाइए, फ्रूट को खाइए, ज्यादा सेवन कीजिए, और उसके इमली वाले जो है ना फूड से खाना बनाइए, और जहां भी सोइए
तो इमली के पेड़ के नीचे सोइए, वो बताए कि ये कीजिए, चरक बताए उसको। देखो बहुत फेमस, वो भी पढ़ने आया था इंडिया में, और कभी कभी ये होता था ना, वाक्य युद्ध होता था कि किसका साइंस टेक्नोलॉजी ज्यादा डेवलप है, उसके लिए भी फॉरेनर आते थे इंडिया में। तो वो ऐसा ही करते गए, वो आगे बढ़ते गए नॉर्थ से साउथ के तरफ, वो चलते गए वो और साउथ में पहुंचे। जब साउथ में पहुंचे, मालूम है उनके बॉडी में पूरा जो है ना व्हाइट स्पॉट नहीं होता है, जो डिकलराइजेशन होता है, पिगमेंट कम हो जाता है, व्हाइट, कभी कभी चेहरा देखे हो, कभी कभी व्हाइट स्पॉट जो हो जाता है जहां तहां, ये एक डिजीज होता है। मेलेनिन जो है ना, वो जो है पिगमेंट है, तो मेलेनिन का फॉर्मेशन कम हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, तब उस पोर्शन में, जिस पोर्शन में मान लो कि ये इस पोर्शन में मेलेनिन का फॉर्मेशन कम हो गया, तो यहीं पे व्हाइट स्पॉट हो जाएगा ऐसे। तो पूरे बॉडी में व्हाइट स्पॉट उनके हो गया। तो वो बोले कि अरे चरक, तुम तो ऐसा साइंस टेक्नोलॉजी का टेस्ट करने बोले कि मेरे पूरे बॉडी में जो है ना व्हाइट स्पॉट हो गया है। तो चरक जो है बहुत हंसे, वो बोले नहीं, वो साउथ में ही थे, और वो सूचना दिए किसी के थ्रू कि जाओ ऐसे ऐसे चरक को बताओ कि हमको तो स्पॉट हो गया है। तो चरक बहुत हंसे और कहे कि देखो, अब तुम